কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ প্রকল্পের সাথে মৌ চুক্তি স্বাক্ষর করা হলো ব্যারাকপুর স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে। নিশিদিন ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এ কমপ্লিট ডায়াগনস্টিক সলিউশন। আমাদের ঠিকানা 144/1 সেন্ট্রাল রোড, আনন্দপুরি, ব্যারাকপুর, কলকাতা 122। আমাদের যোগাযোগ 9875338719। কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ প্রকল্পের সাথে মৌ চুক্তি স্বাক্ষর করা হলো ব্যারাকপুর স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের আয়ুষ প্রকল্পের মহাপরিচালক তথা হোমিওপ্যাথি গবেষক ডক্টর সুভাষ কৌশিক, ব্যারাকপুর স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর সুব্রত কুমার দে সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকা, ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ভারত সরকারের আয়ুষ প্রকল্পের মহাপরিচালক তথা হোমিওপ্যাথি গবেষক ডক্টর সুভাষ কৌশিক এবং ব্যারাকপুর স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর সুব্রত কুমার দে জানান, আগামী দিনে ছাত্রছাত্রীদের ভালো কর্মজীবন সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই প্রকল্প যথেষ্ট কার্যকারী হয়ে উঠবে। না, এটা তো নিশ্চয়ই বলবো, এটা আমাদের একটা মাইলস্টোন যে CCRH, সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন হোমিওপ্যাথির সাথে আমাদের আজকে একটা মৌ সাইন হলো। তো আমাদের এখানে 10টি স্কুল অফ স্টাডিজ আছে, তার মধ্যে ধরুন স্কুল অফ এগ্রিকালচার, স্কুল অফ অ্যালাইড হেলথ সায়েন্স, স্কুল অফ লাইফ সায়েন্স। তো এইসবের সঙ্গে রিসার্চে আর কি গবেষণায় আমরা নিশ্চয়ই খুব বেনিফিটেড হব। এবং আপনারা তো জানেনই এই যে হোমিওপ্যাথি যেটা, হোমিওপ্যাথির যেটা রিসার্চ, হোমিওপ্যাথির রিসার্চ, কারণ এখন হোমিওপ্যাথির রিসার্চে আরও বেশি এনকারেজ করা হচ্ছে গভর্নমেন্ট থেকে। কেন করা হচ্ছে? এটা হলো আমাদের ট্রেডিশনাল মেডিসিন। আমাদের একটা আমরা জানি অ্যালোপ্যাথিক মেডিসিন, একটা হলো হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন। এখন হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনের তার যে একটা বৈজ্ঞানিক একটা দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তার একটা বিচার করা, এবং সেই যেগুলা ঔষধ, উনি যে কথাটা বললেন যে প্লেসিবো, যে আমরা এটাকে ডাইলিউশন করতেই আছি যে তার একটা সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট হচ্ছে, মেডিসিনের কোনো এফেক্ট হচ্ছে না। তো আমরা যদি এই হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনগুলোর যদি একটা সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা দিতে চাই, তাহলে সাইন্টিফিক কাজে এগুলোকে লাগাতে হবে। সেই কাজে যদি আমরা ইউজ করি সাইন্টিফিক কাজে, এবং সেই যে হোমিওপ্যাথিক যে মেডিসিনগুলো আছে তার যদি আমরা বৈজ্ঞানিক যদি ব্যাখ্যা দিতে পারি, তাহলে আমরা পাবলিকও বুঝতে পারবে যে না, এটার একটা সাইন্টিফিক একটা ইউটিলিটি আছে এবং সত্যি এটা একটা আমাদের হিউম্যান বডিতে কাজ করছে। তো এই জন্য তার কি দরকার, এই হোমিওপ্যাথিক ড্রাগ নিয়ে রিসার্চটা বেশি দরকার, গবেষণাটা দরকার এখন। তার ফলে যেটা হবে যে হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনের একটা বিশ্বাসযোগ্যতা আমাদের পাবলিকের মধ্যে ডেভেলপ করবে, এবং লোক আরও বেশিভাবে হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন, কেননা এটা হলো আমাদের ট্রেডিশনাল মেডিসিন, এইটা ইউজ করবে। হ্যাঁ, এবং তাতে আলটিমেটলি পাবলিক বা আমাদের জনসাধারণের একটা উপকার হবে, রোজগার বাড়বে, লোকের এমপ্লয়মেন্ট বাড়বে, এবং রিসার্চে আরও বেশি উন্নতি হবে। देखिए, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा प्रेजेंटेशन में 4 टाइप के बहुत अच्छे कोर्स करा रहे हैं। इसमें क्या है कि BSc, MSc और PhD के जो स्टूडेंट्स हैं, लाइफ साइंसेज वाले, इनको क्या होगा कि हमारे साथ जुड़ने से CCRH में हम टेक्निकल एक तो सपोर्ट इनको देंगे, प्लस जो यंग बर्ड्स हैं इनको अगर कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है छोटी मोटी, जो एक इनको चाहिए होता है कोई पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए, तो उसमें भी हम मदद करेंगे। तो इनको लिए एक रिसर्च मेथोडोलॉजी हम इनको बता सकते हैं, कैसे रिसर्च में काम किया होता है, कैसे इनके पब्लिकेशंस हो गए जो इनको आगे सुविधा मिलेगी, ताकि ये अपना अच्छी जॉब इनको मिल सके, या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके टीचिंग का काम कर सकें, या रिसर्च डिपार्टमेंट वहाँ पे चला सकें। एक यूनिवर्सिटी में ये काम, ये कितना फ़ायदा हुआ फ्यूचर में यूनिवर्सिटी की तरफ से? एक्चुअली अभी तक हम होम्योपैथी की जो मेडिकल कॉलेज है उसमें कुछ स्कीम्स चलाते हैं, STSH बोलते हैं उसको, शॉर्ट टर्म स्टूडेंटशिप इन होम्योपैथी। ऐसी जो MD स्कॉलरशिप होती है उसको भी हम फंडिंग करते हैं। उसमें क्या, जो बेस्ट प्रोजेक्ट होते हैं उनके बच्चों के, उनको पहले दिन से ही पता लगता है कि हमें रिसर्च में काम कैसे करना है। होता क्या है कि सभी के पास डाटा बहुत सारा है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी से आप उसको ऑर्गेनाइज वे में सीख जाते हैं कि उसको कैसे प्रेजेंट करना होता है। और किसी भी रिसर्च का फ़ायदा तभी है जब वो ट्रांसलेशनल रिसर्च हो, मीन्स जो आप कुछ कर रहे हैं वो डिसेसिमिनेट होना चाहिए समाज में, जो एक सफरिंग ये ह्यूमैनिटी है, इसके फ़ायदे के लिए आप क्या कर रहे हैं। रिसर्च तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन अगर उनको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, या आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, नेगेटिव काम करना भी एक रिसर्च में आता है कि कुछ भी अच्छा है, ताकि आपने एक काम किया उसमें आपको सफलता नहीं मिली, आप उसको दूसरे को बताएंगे कि आप पब्लिश कर देंगे भाई ऐसे ऐसे अगर आप स्टेप चलेंगे तो आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। तो वो भी एक अच्छी रिसर्च मानी जाती है। जरूरी नहीं कि रिसर्च से हमेशा पॉजिटिव फाइंडिंग ही आएगी, अगर नेगेटिव भी आ रही तो उससे दूसरे लोगों का टाइम, पैसा और एनर्जी बचेगी। तो ये बच्चे हैं, बच्चे सीखेंगे। अभी तो पढ़ते पढ़ते अगर कोई सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, जैसे हम देख रहे थे 4 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है,
फिर पीजी में हमारे साथ अच्छे जुड़ सकते हैं, बच्चों को नॉलेज भी अच्छी होगी। यहाँ पे क्रॉप, ये जो एग्रो होम्योपैथी का आजकल बड़ा ट्रेंड है, तो एग्रो होम्योपैथी में भी बहुत अच्छा फसलों पे हम काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे ब्लॉक्स बनाएंगे। अभी चट्टोपाध्याय जी से बात हो रही थी, फिशरीज़ पे भी हम कुछ काम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्कोप है और ये निश्चित बात है इन बच्चों को फ़ायदा होने ही वाला है। स्टेट ये जो रिसर्च होगा, जो पढ़ने का जो काम है, तो स्टूडेंट में काम का जो फैसिलिटी है वो क्या बढ़ सकता है इसमें? हाँ, निश्चित रूप से सबसे फ़ायदा होगा, क्योंकि हर एक आजकल कहीं पे भी जॉब पे जाते हैं तो सब पूछते हैं एक्सपीरियंस क्या है आपका, पब्लिकेशन क्या है। तो अगर कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा बच्चे अभी से ही शुरू करेंगे, एक तो खाली कॉलेज की पढ़ाई होती है, उसके साथ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आता है, आपने कितना रिसर्च किया, कितने साइंटिस्ट के साथ आपका एक्सपोजर है, इस चीज़ पे ही फ़र्क पड़ता है। कल को यही बच्चे टीचिंग में जाएंगे तो इनको पता लगेगा कि ये तरीके हैं जिसमें हम सक्सेस हो सकते हैं, अपने आगे बच्चों को गाइड कर सकते हैं। तो इससे निश्चित रूप से फ़ायदा ही होने वाला है और ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। हमें होम्योपैथी में CCRH को ये फ़ायदा है कि हमें अच्छे बच्चे मिलेंगे, अच्छे बर्ड्स मिलेंगी जो आगे हमारे लिए भी काम करेंगे। बहुत सारी चीज़ें कि होम्योपैथी कई बार होता है कि काम कर रही है, लेकिन कैसे काम कर रही है, बहुत सारे इसमें कहते हैं कि हम बायोलॉजिकल मॉडल्स पे काम करती है, ह्यूमन में काम कर रही है, लेकिन अगर प्लांट्स पे काम करती है तो ये भी एक अच्छा है। बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन मार्क करते हैं कि होम्योपैथी एक प्लेसिबो साइंस है, कि वो साइकोलॉजिकली काम करती है, तो प्लांट को तो नहीं पता कि उसको क्या मेडिसिन दे रहे हैं कि खाली पानी दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चों के साथ हम जुड़ेंगे और ये बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे तो निश्चित ही इसका एक पॉजिटिव आउटकम आएगा ही आएगा। थैंक यू सर। सो नाउ थैंक यू सर। Thank you, ma'am. Technology Ministry of Science and Technology, Government of India. Thank you, sir. Achievement Award. So I would like to request our respected VC sir to kindly felicitate Dr. Subhash Kaushik with Vivek Jyoti Samman Lifetime Achievement. Thank you. সাধ্যের মধ্যে স্বপ্নের ফ্ল্যাট খুঁজছেন? লাবণ্য গ্রুপের পক্ষ থেকে ব্যারাকপুর হরিসভা মন্দিরের নিকটে সোনাঝুরি আবাসন। থাকছে লিফট, টপ ফ্লোর, সেট, 0% GST। এছাড়াও থাকছে ব্যাংক লোনের সুব্যবস্থা। দেশের 75তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে থাকছে প্রতি ফ্ল্যাট কেনার উপর আকর্ষণীয় উপহার। থাকছে 10 গ্রাম সোনার কয়েন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। ফ্ল্যাট বুকিং চলছে। আমাদের যোগাযোগ 7278 200 456।